Hello students, this is my new video related to how to find log value with and without log table. My dear students, continuously I am observing that you people are in great need that how to see the log value perfectly from the log table, and suppose if you are not having log table in your hand, then how to calculate the log value, because now at this moment you are going to give the competitive examination as well as you are having the pressure of the boards. So how to solve this problem? So I am having the solution of both the problems of yours. So watch this complete video, and if you are still having any query, any question, you can write the message to me. Okay, so let's see. Definition of log function I have already discussed in my previous video, so I am not going to concentrate much on it. How to find out the domain and range, that I already discussed. So if you have not yet seen that video, I'm going to share the link in the description box that you can see. Okay, so my concentration in this video is on how to see the log table. So I have considered 4 examples for you. The first is log 3.058, second is log 42.58, third is log 0.0258, and the fourth is log 323.25. By these 4 examples, I think that all the problems of log will be clear to you. So just see one by one each of them. Your first is 3.058. Okay, so how to see that? Actually, log values, when we see it in the log table, we get a number that has the whole part as well as the fractional part. So actually the whole part, it means it is divided into two parts. The whole part is called the characteristic, and the decimal part, the fractional part, is called the mantissa. Okay, so we have to calculate both the parts. So first part is characteristic. So first of all, you see that how to write the characteristic. Your question is, your digit is 3.058. Okay, so before decimal, it means from at the left hand side of the decimal, how many digits do you have? Only one, that is 3. So what do? We subtract number of digit minus 1. So as we have one digit, minus 1 means 0. So our characteristic value will be 0. In this example, next example, you can see 30.58. So how many digits are there? 2 minus 1. So that will give you 1. Characteristic value is 1. Here in the next one, you can see 305.8. So this will give you 3 digits minus 1, that is 2. So characteristic value is 2. It means 1 less than the number of digits present at the left hand side of the decimal. Now there is another method also, that also I am going to discuss with you, that your number is this. Actually our aim is that number should be in the range from 1 to 10. Okay, so as your 3.058 is in between, it lies between 1 to 10, so there is no issue. You can only write into 10 power 0, because 10 power 0 means 1. So whatever the power of 10, that will be your characteristic. Like in second example, your number is 30.58. As this number 30.58 is, it means it is greater than 30, greater than 10. So it is not, it does not lie in the range 1 to 10. So we have to shift the decimal, 3.058. Okay, so as in mathematics we cannot do anything in air. So how can we do that? By multiplying it 10 by 10. So if 3.058 is multiplied with 10, we will get 30.58 only. So now this number is in range of 1 to 10, but we have into 10. Okay, so what is the power of this 10? That is 1. So our characteristic is value will be 1. In the third one, 305.8, you can write 3.058 into 10 to power 2. So therefore your characteristic value will be 2. Okay, so this is how we calculate the characteristic value. I think now you understood it well. Now the second part, how do we write the answer? Characteristic value, that is in our case that is 0 point, and after that we are going to calculate mantissa, and we will write here. So now for mantissa,
how many digits do you have? 3058. We can calculate the log value up to 4 digits. So 3058 is the number. So first 2 digit works as row, third digit works as column, and fourth digit is for mean difference. Just remember that, okay? So when you are going to look in the log table, so you are going to choose row, in 30 वाली रो को हम चूज़ करेंगे, फिफ्थ वाले कॉलम को चूज़ करेंगे, और उसके बाद हम एक और वैल्यू ऐड करेंगे जो 30 वाली रो में मीन डिफरेंस 8 वाले के सामने आएगी, ठीक है? तो आपको करना क्या है बेसिकली, यानी कि 30 वाली रो फॉलो करनी है, कॉलम कौन सा फॉलो करना है? 5 वाला। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको आप लिख लेंगे, ठीक है? फिर आगे इसी रो में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक और चीज़ होती है मीन डिफरेंस करके। तो मीन डिफरेंस में भी आप कौन से पे जाएंगे? जहाँ 8 वाला कॉलम होगा, और वहाँ से वो वैल्यू भी आप पिक कर लेंगे। इन दोनों वैल्यू को आप ऐड करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें देखना है कौन सी 30 वाली रो में फिफ्थ कॉलम को, ठीक है? तो और उसके बाद ये, तो आप क्या करेंगे, ये हमारी लॉग टेबल होगी, इसमें हम 30 वाली रो में जाएंगे। तो जब हम 30 वाली रो में जाएंगे तो हम जब देखते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है? 4843, ठीक है? वो हम यहाँ से 30 वाली जब रो होगी उसको बहुत ध्यान से देखेंगे तब हमें मिल जाएगा। फिर जब हम मीन डिफरेंस की वैल्यू देखेंगे तो वो हमारी आती है 11। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4854, और हमारी करेक्टरिस्टिक क्या था? 0। तो हमें क्या मिल जाएगा? 0.4854. सो दैट विल बी योर लॉग आंसर, ओके? सो दिस विल बी योर लॉग वैल्यू. I think it is clear to you. Is there any problem? Okay. So now you see the second problem. This is what I have explained. So those who wish to read it, आप इस पूरी स्लाइड को रीड कर सकते हैं. इसमें एक एक स्टेप को डिटेल में लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा. वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको समझ में आ ही जाएगा. अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए. जैसे 42.58 है. अब करेक्टरिस्टिक मुझे लगता है आपको पता है कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं. तो 2 डिजिट्स हैं तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? 1. क्लियर है आपको? और 4258. अब आप क्या करेंगे? 42 रो में फिफ्थ कॉलम, पहले वो वैल्यू हमने पेन डाउन करी, दैट इज 6284. उसके बाद 8 वाली, मीन डिफरेंस 8 वाली, तो वो क्या आती है? 8 ही आ जाती है. इन दोनों को ऐड करा तो क्या मिल गया? 6292. तो हमारा करेक्टरिस्टिक क्या था? 1, और मैंटिसा क्या आया? 6292. तो हमारा आंसर क्या बन गया? 1.6292. दिस इज़ योर आंसर, ठीक है? अब इसी तरीके से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए जो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है. इसमें दे रखा है 0.0258. तो अब इसको क्या करें, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, नंबर जो है उसकी रेंज क्या होनी चाहिए? 1 to 10. तो ये नंबर तो 1 से छोटा हो रहा है तो हम डेसिमल को इस साइड शिफ्ट करेंगे. जब हम शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2.58. और लेकिन हमारे 10 पर पावर कितनी आ जाएगी? -2. तो हमारा करेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा? -2. क्लियर है आपको? क्योंकि हमें डेसिमल किस साइड शिफ्ट करना पड़ रहा है? राइट हैंड साइड. तो हमारी पावर्स किस में जाएंगी? माइनस में. तो हमें क्या मिल जाएगा? -2. अब मैंटिसा के लिए अगेन आपके पास नंबर क्या हुआ? 258. तो हम क्या करेंगे? 25 वाली रो में 8th वाले कॉलम को पिक कर लेंगे, क्योंकि इसमें मीन डिफरेंस के लिए आगे चौथी डिजिट हमारी क्या आएगी? 0. तो फिर हम उसे देखें ना देखें वो 0 ही रहनी है. तो 25 हम 8 वाले कॉलम में जाएंगे तो हमें नंबर क्या मिलता है? 4116. तो मैंटिसा हमारा हो गया 4116, और हमारी करेक्टरिस्टिक क्या थी? -2. तो -2 में जब हम ऐड करेंगे 0.4116 तो हमारे पास क्या बचेगा? -1.5884. दिस इज़ योर आंसर. क्लियर? अब एक और एग्जाम्पल आपके लिए. इस एग्जाम्पल से पहले मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि ये विदाउट लॉग टेबल, क्योंकि जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो तो आप खुद भी कर सकते हो. तो विदाउट लॉग टेबल हम कैसे इसको सॉल्व करें? तो विदाउट लॉग टेबल तो बहुत इजी है. आप इसको भी बहुत ध्यान से सुनना. क्या करना है? 3.058. आपको अच्छे से पता है कि आपका जो लॉग है log 3, इसके लिए हमें बस क्या होना चाहिए? log 1 से लेके log 10 की वैल्यू को थोड़ा सा हमें मेमोराइज करना होगा, ठीक है? अगर हमें वो आती है तो हम इसको विदाउट लॉग टेबल भी कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये वैल्यू, इनमें भी मेन वैल्यू कौन कौन सी है हमारे पास? log 2 याद कर लीजिए,
log 3 याद कर लीजिए, log 7 याद कर लीजिए। अगर ये भी याद है तो आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज आपको निकालनी है log 3.058, तो आप क्या करिए, log ये नंबर किस किस की रेंज में आता है, log 3 और log 4 के बीच में आता है। तो log 3 की वैल्यू मैंने अप्रॉक्सीमेट ली है 0.47 और log 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.60। इन दोनों वैल्यूज़ का हमने क्या ले लिया, डिफरेंस। तो हमें क्या मिला, इसको माइनस कर दिया 0.60 में से 0.47, तो हमें क्या मिल गया 0.13। अब हमारे पास देखो log 3 तो हमें पता है, हमारी प्रॉब्लम है कि 0.058 आ रहा है वो क्या वैल्यू होगी, ठीक है। यानी 3 से जो बड़ा आगे क्या है वो वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये डेसिमल पार्ट है यानी 0.058, इसको इस डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाता है 0.00754। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आंसर लिखते समय log 3 की वैल्यू जो कि होती है 0.47, इसमें बस आप इस वैल्यू को ऐड कर दीजिए, आपको अप्रॉक्सीमेटली अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी काम है, यानी आपको रेंज देखना है, अगर log 3 पॉइंट समथिंग है तो 3 और 4 की वैल्यू पिक करेंगे, 4 पॉइंट समथिंग है तो 4 और 5 की करेंगे। इस तरह से करके आपको डेसिमल पार्ट को उस डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और जो भी अगर log 3 आता है आगे तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 4 आता है तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे। एक और एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में विदाउट लॉग टेबल अगेन 42.58। आप सबसे पहले तो आप जानते हैं कि क्योंकि 2 डिजिट है तो हमारा करेक्टरिस्टिक क्या बनता है 1। अब इसका रेंज क्या हो गया, आप देख लो 4.258, यानी कि 4 और 5 के बीच में। तो हमने 4 की वैल्यू लिखी, 5 की वैल्यू लिखी, डिफरेंस लिख लिया 0.10। अब हमारा डेसिमल पार्ट क्या है 0.258, तो हमने 0.258 से 0.10 को मल्टीप्लाई करा तो हमें ये मिल गया, दैट इज़ 0.0258। अब इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्टरिस्टिक दैट इज़ 1। फिर अब हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, log 4 की, क्योंकि हमारा नंबर हमने चेंज कर लिया था, तो हम log 4 की वैल्यू दैट इज़ 0.60। उसके बाद 0.258 उसके लिए हमने ये निकाला हुआ है, वो हमने लिखा, इन तीनों वैल्यू को ऐड करा तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 1.6258 मिल गया। यानी अगर ऐसा होता है तो हम करेक्टरिस्टिक को भी साथ में ऐड करेंगे, फिर क्योंकि हमने नंबर को चेंज कर लिया 4.258 में, तो हम log 4 की वैल्यू लिखेंगे, और फिर 0.258 निकालने के लिए हमने क्या करा, दोनों का डिफरेंस निकाल के इससे मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू भी निकाल दी है। तो इस तरह से आप विदाउट लॉग टेबल भी इसको निकाल सकते हैं। इसका थोड़ा सा और एंटी लॉग वाला जो पोर्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। मुझे लगता है शायद आपको कुछ सॉल्यूशन मिले, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to press the bell icon for get the notification and subscribe this channel also. Thank you so very much.